Uh, um, Sir, I welcome all here in this next episode of our Bate. And this is where we meet every fortnightly and discuss and talk about the artist and their art. And all of us are here together, and I'll introduce you to Tilak Tikai, who is from Jaipur, and he is Padma Shri, and he's a miniature artist and he's a sculptor. And we have Pradeep Chandraji, who is a photojournalist and an author and a painter. Then we have Mukhtar Kaziji, who is an painter of a great Anurag ji here, who is a watercolorist. And me and Prashant are here together. And you know Prashant very well, and I'm Kirti. And I also paint, sir. Also a painter. And now I would like to introduce Haren sir, Haren Thakurji. Haren Thakur spent his life and nurtured his creative ventures, partaking in the core lifestyle of tribes of Jharkhand. He trained at Shanti under the tutelage of eminent stalwart artists like Ram Kinkar Bej, Vinod Bihari, Somnath Kaur, Dinkar Kaushik, Salim Munshi, Sarbari Roy Chaudhary, and many others. His work encompasses tribal art forms and carries the essence and emotion of nature, life, and faith. His work depicts harmony, simplicity, and peace through color, form, and use of camouflaged icons of tribal and contemporary blend. He gets inspiration from the core of creation, complemented by the serene natural surroundings of Jharkhand. Thakur has discovered the essential structural patterns of tribal art and fused its geometrical sophistication with visual concepts from Egypt's wall paintings of the 30th, 4th era, when Eastern Mediterranean art genres of decorative painting began to free themselves from a subsidiary and narrative role. Like many painters all over the world, Sir has sought to rediscover the essence of primitive creativity of the 18th century dynasty style of Nile Valley paintings. His unique work comes across mostly through mixed medium on Nepalese rice paper. Now we would like to show some the works of Sir, and I would request Prashant to share his screen and show us his work. Sir, you can please explain or talk about your work as and when you feel like. Are you all able to see the screen? I'm happy to be here with the invitation of Prashant Sarkar. Uh, and I can say that it's my great opportunity to talk and interact with all the uh, eminent artists and all here. So, mm, you have already heard about my initiation. I mean, started journey from I belongs to basically Bengal. Okay, my birthplace is Jharkhand. Then schooling is Bengal, West Bengal, Purulia. Then my art education from Shantiniketan. Then again I came back with my service, art service in Jharkhand. About 45 years I'm here in Jharkhand, continuing my the art journey here. But essence of tribal life, which I have got it from Purulia, where my schooling was there, and most of the tribal people surrounded by with my house. I was very much associated with all those tribal people there. And then Shantiniketan also is a place of tribal, if beyond
within 1 kilometers, most of the Santal Paribar, Santal family, Santal villagers there. So I got inspired from that area also. Then again, I came back to after my graduation from Shantiniketan. You have already came to know about my gurus. I got there, the Ram Kinkar, Binod Bihari, Kaushik Da, Somnath Da, all those, the Shailim Munshi, Sharbari Roy Chaudhary, all those I have got as a teacher there. So, with their guidance, I have been trained in basic and the art education there. But uh, my the so then 1976 I came back after my graduation to Ranchi, and uh, when I settled in Ranchi as a teacher, art teacher in such a reputed school there in Ranchi, Jharkhand. When I joined there, initially that was a place of the people of Ranchi were not so aware about the art during that time. So I started teaching to the students and started working then with some different project works like sculpture, murals, paintings. So that was my food for survival, you can say. But simultaneously I used to continue my food for thought, which I have never stopped there from the very beginning. So that was my journey, that starting of my journey, you can say. Okay. So you can ask me any next. How can I mean explain you about my works, or how I have been influenced by my work. You can see the how the pulsation of tribal people I try to capture in my canvas from the very beginning, because I used to move there, in Jharkhand, and village to village and people to people. And uh, in every tribal community, when they talk, which I have observed, when they talk each other, it comes the music, it seems to be music like. And when they walk, it seems to be dancing like that. So that was a very interesting, their rhythm, their way of talking, their simplicity, through which I was being inspired with all those, I mean, sensations of tribal life. So that, I mean, that was my subjects, that was my inspirations, you can say. Most of the paintings, which are the nature, which I have seen in Jharkhand, that is very, the dense forest, the hills, the paddy fields, and the people, such a very simple living there, so they don't bother about the day to day, I mean, the modernity or like that. So in the interior, what I have observed, the some a cowboy, suppose you can see in my painting somewhere, the cowboy sitting under a tree, and sometimes that cowboy is playing flute with his own mind. I mean, this very openly and innocently they are playing flute also. So the music comes from their rhythm of the animals, the vibrations of tree, the vibration of hills, all those that's a part of the subjects of their day-to-day life, which I have tried to capture in my paintings. You can see. So, So there's some kind of effect of the wash technique which I get in the background. Is that the Shanti Niketan? Because that's an yeah. influence That, again. that, that, that yeah, yeah. You can say, because we should not forget the Oriental technique of our art educations.
So that has come from Shantiniketan education, so no doubt. During that time, during our time, the worst tempera was very much compulsory to be educated, But now a little bit it has been changed. So we have got it, that type of techniques during that period. The wash kind of a technique, Yeah, yes. yeah, yeah. And the sculpture, mostly the main subject was my painting, no doubt, but sculpture was my subsidiary subjects, so the sculpture was not, I have not, I mean, taken as a main, I mean, creative subject in my life, because most of the sculpture what I did, that was like kind of project works. So public art kind of that in Jharkhand, Ranchi, and in Shantiniketan, during our Kinkarda, when he used to work, I used to observe how he using the materials, how is he binding that structures, all those things. So it had got inherited, in my sense. So with that influence, I started some making sculpture. In the ground, the park, even in my school Mhm. where I was working there, you can see some sculptures there. So I started working with that sculptures. And one thing, you will be happy to know that when I came first time in during that time in Ranchi, so I was very much upset because from Shantiniketan to Ranchi, that time there was no any environment, artistic environment was there, no any art school, nobody knew about the art scenario. So I was thinking that whether should I continue it or not, or again I will go back to Shantiniketan or any big place like Delhi, Bombay, Kolkata. But suddenly I thought that Nandalal Bose, I had gone through one of his articles of Nandalal Bose. Nandalal Bose told that the dear students, he told about to the students, I mean the students of mostly Kala Bhavan, wherever you go from Shantiniketan, you don't think that Shantiniketan will, I mean, will accompany with you to that place. Shantiniketan, you can't take Shantiniketan to that place. Suppose you go to Nepal, you go to Rajasthan, or you go to somewhere else, wherever you go for your service, for your next journey. So you never think that Shantiniketan will, I mean, accompany with you. You have to create another Shantiniketan like that. Whatever you have got it from Shantiniketan, you try to create that environment in your place where you are working. So then you can survive. So that was the you can say turning point in my life. So I started creating the murals, sculpture, then different type of mixed media paintings, all those for just to attract the people, just to attract the students also in the nearby school and colleges. So that was my another, you can say, the even enjoyment I used to enjoy with the students also, because I make them involved during my work. So that was my another point to survive, I mean, and to continue in Ranchi, such a place. And now it has become such a modern place that everybody knows it about the art, the exhibitions, how the paintings being displayed, the difference between the painting, sculpture, whatever it may be, art education. They are already, acquainted with all this scenario. So Yes, that's yeah, really very nice. And one thing that comes to my mind is like, as you say, that you yeah. started working in Jharkhand, and the kind of work that we see is a combination of modernity and the tribal forms. So, how did the people there or the general public take it? And how was the association of your art and the general public there? Oh, one thing I would like to convey you that tribal art form is not in my paintings. Okay, tribal art form, basically the tribal art in Jharkhand, the Sohrai and Kohobar.
So the tribal people, they used to draw it just in during the Rangoli or the festival. So they used to Festival. paint it just like a Kalighat pot and other the our Madhubani paintings like that. There is a Yes, very yes, very beautiful form, very beautiful I mean designs you can see in the tribal people areas. So that I have not captured all those forms from their artistic element, but my the form is purely I try to get it from my own original. So the how they sit, okay, they are not conscious, they are not bothered about wherever they sit, wherever they walk, and how they think. So the line of their body movement, the gesture, the rhythm of the figure, the rhythm of the animals, whatever may be, that I try to convey in the very within very limited lines, and not much so details everywhere. So just to get the rhythm of their movement. So that was my, you can say, line or line of form, which I have tried to express in my paintings. So it is yes. not captured from the tribal motive or like that, which normally we Mhm, see in mhm. the cover and so on. Not like that. Yes, So, sir. and the blend of modernity. So obviously, uh, unless we blend it, the modern concept, the form, the some. Initially, I used to work, because initially I was influenced by Egyptian form of art. So the elongation, the color, the motifs of the Egyptians. Initial work I used to use in my paintings, but gradually that became not in the present work. So I had to forego all those elements. So again, I the same kind of motive, same kind of, not same, but similarly I got the original art movement, the pulsations of tribal life, which I have tried to convey from Jharkhand. And basically, the tree, everywhere in Jharkhand I see that the form of tree, different type of trees, and I try to get the vibration of the tree. So tree, normally they used to worship the tree just like a god. So now, what I felt that now we are very much concerned about the environment. So we are now going back to True. the worship of the trees. Okay, so but in the Jharkhand tribal peoples, they themselves has got the inbuilt quality of how to protect the tree, how to worship the Definitely. trees, and The yeah, environment. and yeah, and the tree plantations should not be neglected just like a formality. What we have seen in certain programs. What tree plantation should be the form of a festival, which I have observed, which I have experienced in Shantiniketan. Gurudev Rabindranath Tagore, who initiated the plantations of trees, should be in such a unique celebration. It should be like a celebration that you design wherever you plant, just before digging the mud area, you just give some rangoli. You might have seen the Briksha Ropan is a beautiful festival Yes, which was there's a being whole initiated by the, yeah, way of yeah, doing it. Yes, very, yeah, very holistic festival right. we used to celebrate during that time. And the plant is being planted, so which and that is just like a, the life force. So the same thing which I have seen in Jharkhand, the tribal people in this Sarul and in other festival, they used to plant the tree in such a way. uh, it is a kind of big festivals.
So I see that this is the most modernity, to protect the environment just now. Nowadays, from the global directions comes, you have to plant the trees like that, in like that, whatever may be. Yeah, So and the it comes thing, naturally yeah. to these people. Very Yes, true. yes, yeah. But Yes, that primitive systems which they have, they are following even today. They are following the same techniques. Is a big festival they are celebrating. So we should learn from the tribal people how to definitely, live. Uh, yeah, yeah. definitely. There are a lot of food. I mean, food of thought for the next generations. We should think about it, which we Yes, are now forgetting. That is another form of art you can see in my work definitely. also. That was Yeah, really yeah. very nice seeing your work, sir, and it's entirely different and definitely thought-provoking. And we would Thank you. also share some of our works of all the artists present here, so that all of us can see the different kind of works here, and we will be very happy if you also saw our work. So I'll ask Prashant if he can go on with showing the other works. जी सर। हाँ सर, अब आप अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए सर को। जी मैं अभी पेंटिंग और स्कल्पचर और कुछ और कई तरह के काम, एंग्रेविंग, मेटल एंग्रेविंग, एम्बॉसिंग, ये सब करता हूँ। और मेरी पेंटिंग भी जो है वो उसमें भी वेरिएशंस बहुत हैं। मैं ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग भी करता हूँ, कंटेम्प्ररी वर्क भी करता हूँ, और दूसरी विधा में भी जो है मैं कई तरह से जो है काम करता हूँ। और मेटल में तो जो मैं काम कर रहा हूँ सर, वो बिल्कुल अलग तरह का काम है। अगर पोर्ट्रेट किसी को बनाना है और मेटल में बनाना है तो वो मैं उसको रिवर्स एनग्रेविंग करता हूँ, और मिंट में जब वो प्रोसेस होता है तब वो पॉजिटिव सामने आता है। जैसे क्वाइन होती है, सिक्का होता है, उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो इतना मुश्किल काम है कि जो भी आपने बना दिया वो फाइनल है। ये मेरी कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। ये अभी कोविड के टाइम पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक संदेश दिया कि जो यहाँ की मोनालिसा कहलाती है हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग में राधा बनी ठनी, उसको मैंने मास्क लगा करके जो है वो मैसेज दिया कि लोग बाग इससे कोविड से बचने के लिए मास्क लगाएं। ये मेरे कुछ स्कल्पचर्स हैं अलग अलग मेटल में और सिल्वर में। मैं जिस डाई सिंकिंग की बात कर रहा हूँ वो यही है जिसमें लक्ष्मी बनी हुई है चांदी में, और ये एम्बॉस किए मैंने स्टील में उल्टा एनग्रेविंग करके। Thank you so much, sir. थैंक यू। Yeah, Anurag ji. कलर में अनुराग। नमस्ते सर। सर मैं उदयपुर से अनुराग मेहता। मैं जनरली वाटर कलर में लैंडस्केप बनाता हूँ। मेरे लैंडस्केप में स्पेशली मॉन्यूमेंट्स ज्यादा होते हैं सर, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, और उसके साथ मैं राजस्थान के जो जनजीवन है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पेंटिंग में आप ऊपर वाली में जोधपुर का एक मार्केट सीन है सर, जो कि ट्रेडिशनल उसमें मार्केट लगता है, एक गेट है उसके सामने। और नीचे वाली पेंटिंग में जो है एक प्रोसेशन है जयपुर का। जयपुर में एक गणगौर फेस्टिवल होता है, उसके अवसर पर एक प्रोसेशन निकलता है सिटी पैलेस से। उसमें आगे 2 हाथी चलते हैं, तो वो हाथी है, और हाथी पे एक आदमी अपना जो जयपुर का जो ट्रेडिशनल ध्वज है वो लेके बैठा हुआ है। तो ये उस प्रोसेशन का व्यू है। इसके अलावा एक नीचे बनारस का इवनिंग व्यू है सर, जो कि बहुत खूबसूरत सीन होता है बनारस का। और ऊपर जो एक पिंक कलर की बिल्डिंग है वो अभी एक नई जयपुर में एक नया मॉन्यूमेंट बना है। दिस इज कॉल्ड पत्रिका गेट, तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस टाइप के कुछ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स मेरी पेंटिंग्स में ज्यादा होते हैं सर। मेरा ऐसा मानना है कि हेरिटेज को दिखाकर हम लोग अवेयरनेस जगा सकते हैं अपनी हेरिटेज के प्रति। इसमें ये राजस्थान के जो रेगिस्तानी पार्ट है उसके कुछ फोर्ट्स हैं। ऊपर जोधपुर का किला है और नीचे बीकानेर का किला है, तो उसके साथ मैंने कुछ राजस्थानी विलेज मोटिव्स को ऐड किया है सर। तो मेरी जो कंपोजिशन होती है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो राजस्थान की संस्कृति है वो नजर आए। बस यही मेरा एक उद्देश्य है। वेरी नाइस अनुराग। हरिंदा,
हमारे इस ग्रुप में जितने भी आर्टिस्ट आप देख रहे हैं, सभी लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। तिलक गीताई सर से लेके और बाकी सब लोग, जैसे कीर्ति है, अनुराग है, मुख्तार है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। प्रदीप जी हैं। तो अनुराग बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, गिटार भी बजाते हैं। इनसे थोड़ा सा गाना भी सुनेंगे बाद में। क्लोजिंग सेरेमनी होता है हम लोगों का एक कोई नगमा के साथ, तो वो बाद में करेंगे। फिलहाल हम दूसरे आर्टिस्ट के काम पे जाते हैं। कीर्ति, ओवर टू यू। Thank you. These are my works, sir, and I work in acrylics. And again, I pick up from the nature. Nature is the theme that I like to paint with. And usually I take a lot of trees in my paintings, and parrots is one of my favorite things. And this again, you see this one painting has a lot of trees on which two parrots are there, and the parrots depict the life and how they imitate to go forward, move forward. And the other one is the tree, जो बड़ का पेड़ जिसका पूजा करते हैं, जो आप बोल रहे थे कि ट्राइबल एरिया में भी बड़ की पूजा बहुत करते हैं. So that is one theme which I really like, and that's why I've painted different figures on the trees itself to show the unity between the nature and the humans. And this black and white is ball pen on canvas board, which I have used. And again, all the elements are from the nature, and I also take some elements from the Madhubani art, which has very delicate and intricate patterns, which I really like depicting. And the other one also is a tree of life. These are again my favorite trees. One is like the chirpy birds, which has a lot of birds on it, though the tree is all dried up, but the life is still going on. And the other one is a black and white tree again, a bud tree that I wanted to depict, which is a huge tree, and there's a little sapling coming from the ground, which shows how the life goes on. So that was what I wanted to depict in this one. मुख्तार भाई. Over to Mukhtar ji. Mukhtar Kazi from Mumbai. Good evening, everyone. Sir, these are my abstract work. Basically, I work on abstract paintings and with acrylic colors. So I feel life is a journey towards light, and this is what I want to depict in my painting. These are two works, red and blue. Next. Sometimes I paint cityscapes. So because I belong to Mumbai, I did one series on Mumbai. So you can see this left one. It's a British station, acrylic on canvas. These are charcoal works. Same Rajabai Tower and Taj Hotel. I'm a photojournalist. I've worked with a lot of newspapers like the Times of India, the Indian Express, the Week, and the Illustrated Weekly. Mainly, my main job had been photography, and I had loved it, but I have great love for art. So I've been in the field of art too, and I have done a lot of art shows, attended art galleries, I'm in art camps, and have worked with artists like Paresh Maiti, Chintan Upadhyay, Charan Sharma, Bua Shetty, even Mukhtar Kazi. And that's another thing which I like. And these days, for the last 8 to 10 years, I have been very busy writing books. Some of my books are on Mr. Amitabh Bachchan, M.F. Hussain, Amir Khan, and that's all what I do. Thank you. This is a picture of Hari Prasad Chaurasia, which was shot on the terrace of a building and remains one of my favorite photographs. The picture of Nasiruddin Shah has been shot in such a way that it depicts that he's a theatre artist. So that's why we can see a lot of lights in the background, and that is how it was planned to be shot. Arenda. Yeah. These are my work.
These Yeah. are my new landscape series on oil and canvas. मेरा जो लैंडस्केप होता है बेसिकली वो नेचर से डिपिक्टेड होता है, जैसे सभी का होता है, लेकिन मैं नेचर से जुड़े हुए भी उसमें से कुछ ना कुछ सुपर इम्पोज करके मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक एनिमल्स, फिगर्स, फेसेस, उसी नेचर के एलिमेंट्स के थ्रू। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ सुपर इम्पोज करके। और इसके अलावा मैं बहुत सारे मैं भी थोड़ा बहुत स्कल्पचर्स वगैरह कर लेता हूँ। ये कुछ मेरा ब्रोंज के स्कल्पचर्स हैं, म्यूरल्स हैं, सेरेमिक क्ले का है, और बस्ट है डाई कास्टिंग। और इसके अलावा मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, जिसमें बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मृदंग से लेके नाल, खोल, कोंगो, बोंगो, सब, तबला। इन्हीं को लेके मैं नर्चर करता रहता हूँ, आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट सब मिला के। ये कुछ मेरे रिस्टोरेशन का काम है, रिस्टोरेशन एंड म्यूरल्स। इसके साथ साथ मैं कुछ कमर्शियल काम भी करता हूँ, जैसे एग्जीबिशन स्टॉल डिजाइनिंग वगैरह अलग अलग स्टेट्स में। अभी तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन पहले मैं बहुत सारा ये काम करता था फॉर द कॉर्पोरेट। क्या नेक्स्ट जनरेशन को लिए, नेक्स्ट आर्ट सिनेरियो को लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा क्या आप थोड़ा सा उस दिन बातचीत जो हो रहा था, तो हम लोग इसका ऊपर भी थोड़ा सा अपना थोड़ा सा एक दो राय ले सकते हैं, है ना? कि इज अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि आर्ट का एजुकेशन तो अलग बात है, ठीक है, आर्टिस्ट एंड इसलिए हम जो एक चीज बोले कि आज का दिन में आर्टिस्ट, द क्रिएटर एंड क्रिएशन, इन दोनों में बहुत कुछ ना लिंक बिछड़ते जा रहे हैं। माने इट इज नॉट properly linked with both the who creates and the art form. तो दोनों में थोड़ा सा लग रहा है, आप देखोगे the painting or some art form or whatever sculpture, उसका साथ आर्टिस्ट का क्या रिलेशन है, आर्टिस्ट का साथ इमोशनली अटैचमेंट है कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग को यंग जनरेशन को चर्चा का विषय होना चाहिए। क्यों कि आज अभी हम लोग आर्ट फॉर्म को लेकर के, आर्ट का न्यू मतलब इवॉल्व को लिए क्या कुछ आगे बढ़ रहा है कि एक जगह में स्टैग्नेंट हो गए हम लोग इन ओवरऑल, ठीक है। हम लोग जैसा पोस्ट कंटेम्पोररी आर्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म लेकर के बहुत चीज बातें होते रहता है, बहुत कुछ हम लोग मतलब करते भी है, बहुत कोई अनजाने भी कर देते हैं। ओके, तो ये चीज लेकर के हम लोग को यंग जनरेशन को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। मेरा नजर से बहुत कुछ हम जो आजकल मीडिया में देखने को मिलता कि है ना, बिना मतलब विदाउट एनी एक्सपीरियंस दे आर क्रिएटिंग such a complicated art form. They are not able to explain why and what is the purpose of it and what is the philosophy behind it. So ये चीज को थोड़ा सा हम लोग को सोचना होगा कि क्रिएटिविटी में नहीं तो अदर्स की स्टैग्नेंसी आ जाएगा। क्योंकि आप भी देखोगे कि आजकल एक नया ये है कि आर्टिस्ट बायर्स का पीछे दौड़ने लग रहा है, और आर्टिस्ट एक क्रिटिक्स का पीछे मतलब दौड़ रहा है। इट शुड नॉट बी, critic should run to the artist, the buyer should run to the artist, not opposite. So ये हम लोग को थोड़ा सा सोचना होगा कि हर कुछ माने सालों से देख रहे हैं कि एक एक कॉकस सर्कल बनते जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर, डोंट टेक इट इन अदर वेज, इट इज आई एम टॉकिंग, यू नो, वी शुड डिस्कस बिकॉज वी आर ऑल आर्टिस्ट। तो ये चीज को हम लोग को भी एक कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये भी डिस्कस होना चाहिए कि पिछले कुछ साल पहले तो ठीक है, लॉकडाउन में तो अलग सिचुएशन है, नो डाउट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो एक एक पर्टिकुलर क्रिटिक्स, पर्टिकुलर बायर्स, एक एक ग्रुप सर्कल क्रिएटर और आर्टिस्ट को लेकर मतलब उसके एक एक सर्कल बना करके उसको आगे बढ़ाता है। ये बहुत देखे, तो ये चीज को हम लोग को तोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह में ऐसा है, वेरी यंग टैलेंट
जो आज किसी को पता भी नहीं है। तो ये चीज एक सर्कल से वो लोग बाहर नहीं होता है, मतलब ये हो रहा है। लोग इससे थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना होगा। यंग जनरेशन को भी ऐसा नहीं है कि काम कुछ सपोज 2-3 साल काम करने का बाद ही हम चल मुरारी हीरो बनने को लिए बड़ा बड़ा एग्जीबिशन गैलरी में हम लोग चले जाते हैं एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक चीज मेरा नजर से, मेरा जो क्या बोले उसको, उपदेश नहीं बोलेंगे, मेरा सजेशन है कि आप पैसा अपने आप आते जाएगा। अगर आर्ट को एक कॉमोडिटी नहीं बनाना चाहिए, आर्ट को एक क्या बोले कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। ये अंदर का चीज है। इट शुड कम फ्रॉम द विद इन, सो इट शुड टैली विद द इमोशन, इट शुड टैली विद द फिलोसॉफी। तो ये चीज को हम लोग को लेकर के तभी एक क्रिएटिविटी को आगे हम लोग ले जा सकते हैं। कुछ नयापन तब आएगा, जो बहुत जरूरी है आजकल का यंग जनरेशन को सोचना। एक हम लैंडस्केप बना रहे हैं, ठीक है, और एक कुछ ऐसा काम कर रहे हैं हम, क्या ना दर्शक को और बायर्स को खुश करने के लिए, ये इससे हम लोग को हटना चाहिए। इसको चलते ना हम लोग को आर्ट जो चीज, मतलब क्या बोले, जो आर्ट का जो एक जनरेशन है वो पीछे हटते जाएगा। तो वी शुड बी वेरी अलर्ट अबाउट ऑल दोस थिंग्स। आर्ट डोंट मेक द आर्ट इज अ सेलिंग कमोडिटी। ओके, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये चीज कमर्शियल एस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन कमर्शियल सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ फिलोसॉफिकल और कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटी के साथ आर्टिस्ट को काम करना चाहिए। इसीलिए हम बोले जब फूड फॉर थॉट एंड फूड फॉर सर्वाइवल। फूड फॉर सर्वाइवल को लिए आप यू डू सम वर्क फॉर बेचने को लिए, कमर्शियल सर्वाइव करने को लिए, लेकिन फूड फॉर थॉट को इंटैक्ट रखते हुए वो चीज करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, जैसे हमने हमारे बड़ों से सुना था कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का एक जर्नी होता है फ्रॉम रियलिस्टिक टू एब्स्ट्रैक्ट। रियलिस्टिक से धीरे धीरे स्टाइलाइजेशन होते होते वो डिस्टॉर्ट होते होते वो एब्स्ट्रैक्ट में कब पहुंच जाएगा एक आर्टिस्ट को पता नहीं लगता। लेकिन बहुत सारे ऐसे आप सब लोग ने, हमने भी देखा है कि न्यू जनरेशन के जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो थॉट ओरिएंटेड नहीं है। जैसे आप बता रहे थे कि वो कुछ बता नहीं पाएंगे, कुछ कलर का ड्रिपिंग टेक्सचर किसी से ले लिया, किसी का स्ट्रोक ले लिया, इन सबको मिलाकर बना के एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना दी। तो वो भी हो रहा है, और इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये यही चीज है कि ये बहुत बड़ा संकट आने वाले हैं इस चीज को अगर होते जाएगा तो, क्योंकि इसका पीछे बहुत बड़ा देन नहीं बोलेंगे, ये अभिशाप है कि ये हमारे नेट से यंग जनरेशन क्या करते हैं, नेट से इनका कुछ काम देख लिया, उनका कुछ काम देख लिया, उनका टेक्सचर देख लिया, उनका लाइन देख लिया, फॉर्म देखने का बाद ही थोड़ा सा अपने आप एमलगमेशन करके सिंथेसिस करके वो अपना एक स्टाइल का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अनहाइजीनिक है, अनहाइजीनिक बोलेंगे हम, क्योंकि ये अगर ऐसा होते जाएगा तो माने वी कांट हेल्प इट। सो इट शुड कम विद इन, क्योंकि आर्ट एक जर्नी, आर्ट 40-50 साल बीतने का बाद ही तब अपना एक लैंग्वेज तो तैयार होता है, अपना लैंग्वेज, क्योंकि आर्ट एक्सप्रेशन जो होता है बाद में हम लोग एक लैंग्वेज तैयार होता है। जैसे हम जिस ढंग से गाना गाते हैं, जिस ढंग से नाटक करते हैं, जिस ढंग से हम क्या बोले बात करते हैं, वो अपना स्टाइल अपने आप डेवलप कर जाता है और वो विद इन होता है। लाइक द सेम थिंग, स्टाइल ऑल्सो लाइक दैट। एंड अनदर थिंग आई कैन से टू द यंग जनरेशन कि पेंटिंग को आई यूज टू स्पीक डिवाइड इन दैट वे। पेंटिंग सपोज PAINTING, इट इज अ पेंटिंग, दैट स्पेल, वी स्पेल पेंटिंग लाइक दैट। तो इसको आप अलग कर दो, PAIN पेन, PAINT पेंट, एंड देन इज इक्वल टू PAINTING पेंटिंग। पेन पेंट दोनों मिलता है जब, तभी पेंटिंग तैयार होता है। So unless you have the pain from your within, you cannot start the painting. So that is most important. And pain मतलब it doesn't mean that pain मतलब खाली दुख दिखाना, कुछ sorrow दिखाना, not like that. Suppose
ए न्यू बॉर्न बेबी जब होते हैं, मतलब माँ का जो पेन होता है, मतलब बर्थ का जो पेन, दैट इज ए हॉरिबल पेन। वही बच्चा जब जन्म लेते हैं, माँ का मुंह में जो हंसी दिखता है, मतलब सृष्टि का आनंद जो होता है, दैट इज अ क्रिएशन, दैट इज अ सृष्टि का आनंद। तो वो पेन हम लोग को, जो कोई भी हम लोग जब न्यू चीज करते हैं, न्यू चीज बनाने का पहले जो सोचने को हम लोग को मजबूर कर देता है, वो पेन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को मन से होता है बनाए, लेकिन बना नहीं पा रहा है। जब वो बन जाता है, तब उसका जो आनंद होता है, जो सृष्टि का जो आनंद है, इट शुड कम आउट, इट शुड कम आउट फ्रॉम विद इन, तभी वो पेंटिंग आगे बढ़ने लगता है, ये चीज। प्रदीप जी, अनुराग जी, मुख्तार जी, आप लोग अपना कुछ राय दीजिए इसके ऊपर जो अभी डिस्कशन हो रहा है। नहीं, डिस्कशन है, ये बहुत अच्छी डिस्कशन है, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नए आर्टिस्टों में, यंग आर्टिस्टों में जिनका इतना नाम नहीं है, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैं एक एग्जीबिशन देखने गया था जिसमें कम से कम 4 आर्टिस्ट ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था, जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था, एंड देयर वर्क वाज एक्सेलेंट वर्क। और पिछले 30 साल 35 साल में अगर आप देखिए तो कृष्णमचारी बोस का काम आप देखिए, या जितेश कल्लत का काम देखिए, या मैं समझता हूँ 88 90 89 के बाद लगभग परेश मैती आए, परेश मैती का काम देखिए। तो इन सब लोगों ने एक अपना लैंग्वेज क्रिएट किया है और उनको रिकग्निशन भी मिला है। और रही बात क्रिटिक और आर्ट की, तो फैक्ट ये है कि आज जो है हिंदुस्तान में आर्ट क्रिटिक बहुत कम है, दैट इज वन। सेकेंडली ये है कि जितने न्यूज़पेपर थे, द बिगेस्ट न्यूज़पेपर से टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स और द स्टेट्समैन तो खैर अब रहा नहीं, हिंदू है, इन सब के सब लोगों ने आर्ट पे लिखना ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, उसका छापते ही नहीं। उसका एक कारण, ये एक बड़ा कारण ये है जो आपने कहा, कमर्शलाइजेशन। सब के सब पेपर अब ये कहते हैं कि भाई आप अपनी पेंटिंग बेच रहे हो 10 लाख की, या आप अपनी पेंटिंग बेच रहे हो 5,000 की या 50,000 की। तो ये जो आर्ट की आप बातें कर रहे हो कि आप आर्ट हो, मगर हो तो आप भी कमर्शियल ना, आप अपनी पेंटिंग बेच रहे हो, कोई बना के मुफ्त में तो नहीं बांट रहे हो ना। तो जब आप 5 लाख कमा रहे हो तो हमको भी दो 50,000 छापने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसका कुछ डिस्कस हम कितना भी कर सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि निकट भविष्य में इसका कोई सोल्यूशन होने वाला है। मगर हो सकता है कि जैसे समय बदलता रहता है, तो जैसे 40 साल पहले मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, खींचते थे लोग, उसके बाद कलर बहुत जोरों में आई, सब लोग कलर करने लगे। अब ये टाइम आ गया है कि फिर से लोग ब्लैक एंड व्हाइट प्रेफर कर रहे हैं। हर आदमी जो अपनी फोटोग्राफ करवाता है, छापता है, वो कह रहे नहीं हम वी वांट ब्लैक एंड व्हाइट। और सडनली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को इतना आर्टी मान लिया गया है कि अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचा है तो मास्टर फोटोग्राफ है, वही कलर में आप कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह हो सकता है कि आज से ये पिछले 30-35 साल की बात है, क्रिटिक जो घटे हैं देश में, और आर्टिस्टों जिनको स्पेस नहीं मिल रहा है अखबारों में, तो हो सकता है आज से 20 साल 30-25 साल बाद वो समय फिर से लौट के आएगा जब क्रिटिक ज्यादा होंगे, अखबार फिर से कहेंगे नहीं हमको आर्ट छापना है, देन आई थिंक द थिंग्स विल इम्प्रूव में, क्योंकि समय तो बदलता है। अगर कलर से ब्लैक एंड व्हाइट से आप कलर गए थे, तो आप कलर से फिर ब्लैक एंड व्हाइट पे आ गए हो। ये है सही बात। और हर आर्टिस्ट जो है, ऐसा नहीं कि हर आर्टिस्ट कमर्शियल ही है कि हम जो है कमर्शियल काम करेंगे कि ये बिके। देखिए क्या काम आपका बिकेगा ये कोई आर्टिस्ट नहीं कह सकता। आप कह लीजिए कि आप कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कमर्शियल काम आपका बिकेगा। एक तो क्या कमर्शियल है, क्या आर्ट है, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे मैं आज ही दिल्ली आया तो मैंने प्रशांत जी की तीन पेंटिंग देखी। अब ये तीनों पेंटिंग उनकी मैंने उनका पुराना काम भी देखा है, और उनके पिछले 2 सालों में ये 3 पेंटिंग उनकी बहुत अलग पेंटिंग थी, और मुझे लगा कि एकदम हटके ही अपनी लैंग्वेज है। अब वो पेंटिंग बिकेगी कि नहीं बिकेगी, दैट इज अ सेपरेट थिंग, but at least he has changed, he wants to do something more what he has not done in the past. This I think which everybody should do. अभी जैसे अनुराग हो,
की बात करूं तो भाई वाटर कलर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, मगर इस बात से आपको जरूरी नहीं है कि आने वाले 5 सालों में आप जो है मॉन्यूमेंट्स ही करें या राजस्थान ही बनाएं। यू हैव टू कम आउट ऑफ हाँ सही बात, लाइफ देखिए राजस्थान की क्या है। आप वहां रहते हो तो उसको छोड़ के आप झारखंड की लाइफ देखिए, उसको स्टडी करिए, तो दैट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट। जब आप दिखाओगे तो हमको ये नहीं लगेगा कि अरे ये तो अनुराग के, अरे ये अनुराग की पेंटिंग है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक वन हैज टू थिंक एंड कम आउट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। जैसे मुख्तार काजी की बात है, तो मुख्तार काजी ने जो सीरीज सिटीस्केप किया ब्लैक एंड व्हाइट में, और बॉम्बे शूट बनाया और बिल्डिंग बनाई और वहां किया, वो सब उनका ब्लैक एंड व्हाइट में भी किया उन्होंने, चारकोल में। उनका बहुत सक्सेसफुल काम है। सक्सेसफुल इन द सेंस कि जब भी उन्होंने शो किया है वो काम हमेशा बिका भी है और लोगों ने उसकी तारीफ भी की है। हाँ, तो जब भी उन्होंने किया है, मगर उनको लगता है कि नहीं मुझे ये तो ठीक है, ये तो मेरा है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी पेंटिंगें बिक रही हैं, मेरा रेगुलर काम भी आ रहा है, उससे हट के वो चाहते हैं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट करूं। अब एब्स्ट्रैक्ट कितना सेल होता है कितना नहीं होता ये तो वो जानते होंगे, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट आल्सो। तो आई थिंक वी ऑल शुड ट्राई दैट, डूइंग दैट थिंग। एग्जैक्टली सर। रिगार्डिंग अनुराग, छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा प्रशांत जी। आई थिंक इट मे हेल्प यू। एक जैसे सोमनाथ होड़, आप लोग सब जानते हैं, सोमनाथ दा का जब ऊंड सीरीज बनाए उन्होंने, ऊंड सीरीज आप पेपर पाल के ऊपर आपने सब देखे होंगे। ऊंड सीरीज उस समय हम लोग शांति निकेतन में थे, तो ऊंड सीरीज जो क्या बोलते हैं, खत जिसको घाव, वो आपने सब देखे होंगे। तो ऊंड सीरीज का पेंटिंग देखने के बाद जब शो हो रहा था वहाँ शांति निकेतन में ये पे, तो वहाँ पर कुछ क्रिटिक कोई आकर कर, फोटो ऐसे जर्नलिस्ट आकर के बोले ये जस्ट टिपिकल एक क्वेश्चन, जो सर ये इतना मॉडर्न इतना एब्स्ट्रैक्ट है, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, वो क्या बना रहे, जैसे एक सिली क्वेश्चन किया। तो उनको पकड़ा, तो सोमनाथ हाथ पकड़ कर बोला, कौन बोला ये एब्स्ट्रैक्ट है, प्योर एब्स्ट्रैक्ट कौन बोला, किसमें कुछ है ही नहीं। उनको हाथ पकड़ करके बगल में एक तो पेड़ के सामने ले गया। ओके, इज ए बिग ह्यूज पेड़ था, पेड़ के सामने ले जाने के बाद उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करके पेड़ का जो मतलब ट्रंक है, बॉडी है, उसका एकदम क्लोज ले गया उनको, उस व्यक्ति को ले जाकर के बोले आप एकदम क्लोजली इस जो पेड़ का बॉडी में जो टेक्सचर है, वो टेक्सचर को आप देखो। देखने के बाद क्या लग रहा है? तब उन्होंने बोला कुछ नहीं, कुछ दागी दिख रहा है, कुछ गड्ढा दिख रहा है, कुछ कैविटी दिख रहा है, लाइक दैट। तो इसमें कौन, ये कौन किया है? तो ये जो कैविटी, जो गड्ढा, जो कट आउट, ये सब कौन बनाया? मतलब कोई आदमी ने बनाया, इसको कट किया। तो हम तो समझता था, वो बोले आप जब ये पेड़ का क्लोज में जब देख रहे हो, ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऊंट्स है कि नहीं, ये पेड़ का ऊंट्स है, पेड़ का घाव है, क्योंकि कोई बनाया घाव, उसको काटा है चाकू से, कोई मारा है, कोई छीला है, कोई, तब ना पेड़ में घाव बन गया। ये घाव कभी नजदीक से देखे हो? तो वो मेरा ऊंट सीरीज में वही घाव है इसमें, जो हम क्लोज करके बनाया। आप अगर इसको उस ढंग से अगर देखोगे, दैट इज द सिंबल ऑफ ऊंट मेरा, मतलब उसको वो दिखाना नहीं है। तो इसीलिए सच ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे दिया उनको, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये अनुराग के बारे हम ये कहेंगे, जैसा आपने जो राजस्थान का जितना भी किला बना रहे, आप किला को पूरा दूर से मत देखिए, जैसा सोमनाथ का दिखाया ना, आप और नजदीक जाओ, जैसे पेड़ को दिखाया, एकदम ऊंट दिखाया, उस एक एक किला में एक एक ऊंट जरूर निकलेगा। हम ऊंट नहीं बोल रहे, मे बी द पॉजिटिविटी में अगर देखोगे, कोई बहुत कुछ लिख देता है उसमें, जो भी देखने जाता है बहुत कुछ उसमें सिंबल बना देता है, कोई ड्राइंग कर देता है, कोई स्क्रैच कर देता है। उस स्क्रैच को आप पकड़ो, एक स्क्रैच में भी एक क्लोज फॉर्मेट करके पेंटिंग बनाओ अपना वाटर कलर स्टाइल में, एक नयापन आएगा उसमें। ये चीज हम बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल सही है, श्योर, यस सर। बहुत मजा आया दादा आपसे बात करके, और जो डिस्कशन निकला बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल है, बहुत अच्छा लगा। मुख्तार भाई और तिलक सर, आपको कुछ राय देना है, इसमें कुछ बात करना है?
जी बिल्कुल, मतलब जो बातें सामने आई है बिल्कुल वैसी बातें हैं जिस तरह का मैं सोचता हूँ, और प्रदीप जी ने भी मतलब उसमें मेंशन किया है। तो यही है कि जैसे सर ने कहा कि कमर्शियल और जो आर्ट है, यानी जो एक प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट है, उसमें हमारे बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और सजेशन तो मुझे लगता है किसी को देना नहीं चाहिए, क्या करे क्या ना करे, ये उसके अंदर मौजूद है। हो सकता है कभी जैसे अनुराग जी जो पेंटिंग कर रहे हैं, मैंने जिस तरह का किया है, तो वो आर्टिस्ट को उसी में कुछ अलग दिखता हो, तो वो अपना करे। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट ही प्योर आर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ आर्ट हो सकता है, या कोई फिगरेटिव हो सकता है, वो लैंडस्केप और मतलब सिटीस्केप भी हो सकते हैं। बट और दूसरा ये है कि हमें कबूल करना सीखना पड़ेगा हर एक चीज को। जैसे कोई मतलब स्टूडेंट निकलता है तो कॉलेज से, आर्ट कॉलेज से, या सपोज कोई सेल्फ टॉट होता है, तो वो एक मतलब एकेडमिक अपना जो कोर्स पूरा करके जब आते हैं, तो उनको रहता है कि इस तरह के फॉर्म होना चाहिए, ये टेक्सचर्स के कुछ रूल्स है, हर कंपोजिशन के कुछ सीख कर आता है। मगर जब क्रिएटिविटी में जब वो जाता है या रियल लाइफ में आता है, जब पेंट करता है, तो हो सकता है वो रूल्स ब्रेक करने की कोशिश करता है। तभी तो वो अपने आप को मतलब एक अलग में फॉर्म में दिखाना चाहता है। तो उसको कबूल करना हमें सीखना पड़ेगा। और ये जो मतलब सीनियर आर्टिस्ट है या जिनके बड़े नाम है, उनको भी उसे कबूल करना चाहिए। जैसे मैं अपनी एक मिसाल दूं, मेरे जो आपका जो लेटेस्ट जो सीरीज है, वो बहुत शार्प, मतलब उसमें डिविजन्स है। तो एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट को मैंने दिखाया वो काम, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का शार्प डिवीजन बोले पेंटिंग में नहीं हो सकता है, ये डिजाइन में हो सकता है। एक्सेप्ट, कबूल है। बट हो सकता है मेरी उस वक्त की जो फीलिंग वो करने की है, और मैं जो चाह रहा हूँ कि उस रूल को भी मैं ब्रेक करूँ, कि उस फॉर्म को, जो डिजाइन आप कह रहे हो, डिजाइन को भी मैं आर्ट की तरह देख रहा हूँ। तो वो मेरा अपना नजरिया है। तो इसको हमें कबूल करना सीखना पड़ेगा कि वो जो एक आर्टिस्ट है, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, और वो हमेशा अपना बेस्ट करने की उसको कोशिश करता है। तो हम, तो मुझे लगता है कि हम जब उसको स्वीकार करेंगे, उसे कबूल करेंगे, तो इससे भी एक नए नए फॉर्म्स निकलने के लिए बहुत आसानियां होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे एक एक मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा काम बहुत सिंपल दिखता है, दो एक कलर्स दिखते हैं, सिर्फ सिंपल है, कभी एक कलर में होता है सिर्फ, या दो कलर में होता है, तो बहुत सारे टेक्सचर्स नहीं है, फ्लैटनेस है, बहुत सारी चीजें हैं। मगर उसके पीछे उसको समझना पड़ेगा कि वो आर्टिस्ट क्या कहना चाहता है, या क्या किस किस चीज को पेश कर रहा है। तो वहां तक अगर हम पहुंचेंगे तो फिर वो फॉर्म भी हमें एंजॉय करें, फिर वो सिंगल लाइन भी रहेगी तो हम उसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत भी एक बढ़िया, उसका। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। तिलक सर, आपके बारे में, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा सर, हमारी कलाओं में बहुत वेरिएशन है, और आप देखिए इस वेरिएशन में अलग अलग आर्टिस्टों का जरूरी नहीं कि एक दूसरे से जो है वो उस बात को सहमत हो। मैं जब आर्ट से निकला तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मुझे कोई सर्विस नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। गुजारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं कंटेम्पररी वर्क करता हूं तो इतना एस्टेब्लिश नहीं हो सकता आदमी की पेंटिंग बेच देगा और काम चला लेगा। उस पोजीशन में क्या करेंगे? हमको वो काम करना पड़ा जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। और मुझे इतना काम मिला कि मैं उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पाया। मुझे आज भी इतना काम है कि मैं उनको मुंह मांगे दामों पे बेचता हूं। हालांकि मैंने क्रिएटिव वर्क किया, मेरी स्टाइल में ही किया, लेकिन वो एक अलग चीज है जिसके लिए मैंने अप्रिशिएशन के लिए सारी दुनिया में एग्जीबिशंस की, और जो कंटेम्पररी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम किया। लेकिन अगर आपको पेट पालना है तो आपको कमर्शियल वर्क करना ही पड़ेगा। आप में करें, आप चाहे पेंटिंग में करें, और वो रास्ता मैंने अपनाया। मुझे बड़ी बड़ी भी बाद में सर्विस मिल रही थी। 17 साल बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, मेरे बीएफए करने के बाद में 17 साल बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएफए शुरू किया। उन्होंने कहा आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा साहब अभी नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं, जहां मैं एस्टेब्लिश हो गया, वो सब तो खत्म हो जाएगा जो मैंने किया है। ये एक वेरिएशन है कि मैं आपके काम को अप्रिशिएट करूं ना करूं, क्योंकि मेरे समझ के बाहर है मॉडर्न आर्ट, यूं समझ लीजिए।
तो उनके समझ के बाहर है। वो कहते हैं साहब आप तो आर्टिस्ट थोड़े हो, क्राफ्ट्समैन हो। अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि जो हमारी बरसों से समृद्ध कला थी, जिसपे आज पीएचडी हो रही है उन्हीं यूनिवर्सिटीज में हमारे पे, तो वो क्यों हो रही है? हमने उसमें भी एक नया आयाम खोजा है, उसमें भी नया काम किया है, उसको एक्सेप्ट, जैसा अभी आपने कहा, एक्सेप्ट, या आप दूसरे की कला को भी एक्सेप्ट करो। मैंने अभी देखिए झारखंड में अभी बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें मुंबई के एक एनजीओ ने आई एम द वन करके उन्होंने एक अपना वहां उन्होंने एक कोर्स चलाया। उसमें पेंटिंग का कोर्स मेरा है, जिसमें उन्होंने वहां के शिक्षा मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री ने दिया, शिक्षा हमार द्वार करके उन्होंने एक वो चलाया है। उसमें वो सारा हम लोग बच्चों को कैसे इसके पीछे रुझान डालें, उनका कैसे इसके प्रति जो है वो लगाव बने और वो कैसे इसको सीखे, इस तरह को सोच करके हमने एक पूरा एक सिलेबस बनाया, एक कोर्स बनाया। तो देखिए उन लोगों के लिए नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? खाली हम अपना ही अपना नाम कमाते रहे कि हम कंटेम्प्रेरी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं या हम ट्रेडिशनल बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं या बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, तो आगे जो जनरेशन है, स्कूल ऑफ आर्ट में कुछ नहीं सिखाया जाता है साहब, कोई कॉलेजेस वगैरह में नहीं सिखाया जाता। सिर्फ वो जो एनवायरमेंट है और वो जो अच्छे प्रोफेसर है उनकी चीज और उसको आगे अपने अपने हिसाब से एलोबरेट करते हैं। तो सीखी तो हमने भी वही सब चीजें, लेकिन अपने अपने तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया सर। तो यही सब चीज, ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय है। आप उसको जो है, कभी पिकासो ने बहुत रियलिस्टिक काम किया अपने जीवन में और उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो ये दोनों चीज जो है बैलेंस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि जो हम लोग कमर्शियल आर्टिस्ट दूसरे आर्ट की और रियल आर्ट की बात कर रहे हैं, इन सब में हम लोगों के डिस्कशन में इस बात को बिल्कुल न लिया जाए या समझा जाए कि कमर्शियल आर्टिस्ट जो है, वो जो कमर्शियल काम कर रहा है, उसका दर्जा कोई भी एब्स्ट्रैक्ट वाले से या किसी नामी आर्टिस्ट से कम है। जो कमर्शियल आर्टिस्ट है वो भी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और वो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना दूसरे कर रहे हैं। इस डिस्कशन में ये कहीं ना लिया जाए कि कमर्शियल आर्टिस्ट का दर्जा जो है दूसरे आर्टिस्टों से कुछ कम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो स्किल्ड वर्क कर रहा हूं कोई भी नहीं कर सकता ऐसा बेकार। आप बताइए मुझे, तो आप कम कैसे किसी को आंकेंगे? वो अपनी जगह उनकी क्रिएटिविटी है, उनका अपना दिमाग है, मेरा अपना जगह मेरा परिश्रम है, और हम सारे के सारे मिलकर के इसी बात पे हैं कि हम अपनी चीज को बेचें कैसे, क्योंकि गुजारा तो करना है ना। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भूखे मर गए ना, वो नहीं बेचने के चक्कर में या नई नौकरी मिलने की वजह। सही बात है, होती है। आप एक्सपेरिमेंट करना है, क्रिएशन करना है, तो आपका दूसरा पहलू मजबूत होना चाहिए कि आपकी अर्निंग कहीं से भी, एनी सोर्स, चाहे प्रोफेसर है कुछ और है, तो वो होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। भूखे पेट भजन नहीं होता है। सही बात, 100%। बिल्कुल सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी आर्ट है, जैसे मुख्तार काजी जी बोल रहे थे अभी कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए दूसरे का आर्ट, या जो आप आर्ट करते हो उससे अलावा अगर कोई कुछ आर्ट कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। बट जो आर्ट फील्ड में कुछ लोग होते हैं जो आपके आर्ट को वेरीफाई करते हैं, विच आई थिंक इज समथिंग, मतलब वो ही आपको या तो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना देता है, या तो आपको एक डेकोरेटिव आर्टिस्ट बना देता है, या आपको बोलता है कि ओके मैं ठीक है कर रहे हैं कुछ। तो वो एक जो एक विशियस साइकिल है, I think that has to be started from the artists themselves. They have to accept others' work and look at it as their expression. जो artist जो भी कुछ बना रहा है उसका जो expression है वो, उसको अगर कोई appreciate artist हम लोग खुद ही करने लगे तो I think it will spread around and it will be a better way of working rather than making compartments की ये ऐसा काम है, ये डेकोरेटिव है, ये different kinds of names that they have given. Art should be taken as art which is pleasing to you or painter is doing. आपकी बात से सहमत। Absolutely correct.
तो सर चलिए अब कुछ गाना सुने क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल। देखिए बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं कि आप तो आर्टिस्ट नहीं हो, तो मैं मान लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है बताइए, बाईपास कर देते हैं बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आज का। परमात्मा की दुनिया में चप्पे चप्पे में आर्ट भरा हुआ है, अगर आपके पास आई है। एकदम एकदम सही बात। जैसे साहब ने कहा, मुझे ठाकुर साहब ने, कि आप पेड़ के नजदीक जाके देखो, वहां आपको क्या नजर आ रहा है, कि इनकी देखने का दृश्य भी अलग है। ऐसे ही हर चीज कहीं देखिएगा। आज इंस्टॉलेशन क्या है, आप जो देखते हैं, आपने कुछ बनाया नहीं है, आपने जो कंपोजिशन किया है, जो असेंबल किया है चीजों को, और जो उसके पीछे आपकी सोच है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। सही बात। तो ये डिस्कशन का विषय नहीं है हम अपना ईगो बना करके कि सब फला तो आर्टिस्ट नहीं और फला है ये नहीं कहा जा सकता। जो एस्टेब्लिश है और जिस पा लिया अपना पा लिया, वही आप समझ लीजिएगा कि आर्ट। बढ़िया। अभी कॉन्सेप्चुअल आर्ट चल रहा है हर जगह में। तो चलिए आज का अच्छा लगा। बातें का सिलसिला एक सुंदर से गाने के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। आपका बड़ा योगदान है। आप ये देखिए कि आप कितने लोगों को जो है प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको जो है कितने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा, आज इस वक्त में आपकी एग्जीबिशन नहीं हो रही है, जो कि आप करते थे हमारे जयपुर में भी। तो ये आपका जो है तरीका है कि आप लोगों को जो है, और इससे हम कई लोगों से देखिए उनके विचारों को हम आपस में एक दूसरे से ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। और सीखने की उम्र खत्म नहीं करनी चाहिए कभी भी कि मैं तो बहुत कुछ सीख चुका। हम किसी न किसी से कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। तो ये जरिया बहुत अच्छा है आपकी जो है बातों का। थैंक यू सर। और कोशिश करेंगे इसको और आगे से आगे और अच्छा सा बनाएं इस प्लेटफॉर्म को। तो आज अभी अनुराग का एक गाने के साथ हम लोग समाप्त करेंगे बातें को। अनुराग ओवर टू यू। ओके यस सर। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू अनुराग। यस। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। रोए भी तो दिल ही दिल में, महफिल में मुस्काए, तुझे सी हम तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए। प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके, जलते रहे हम कितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे
जब तुम नाम हमारा, तेरी अदा के बोले पन से, तेरी अदा के बोले पन से मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। वेरी गुड। तो इस गाने के साथ क्या आज बात। बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी का वीकेंड अच्छा जाए, स्वस्थ रहे, थैंक यू घर पे रहें, और अगले 15 दिन बाद फिर मिलते हैं।